Hello friends, welcome. I hope that you are watching my videos very carefully and learning very well. The basic idea of preparing this video lecture is to give you all the basic knowledge that is required for your higher studies. I hope that you are learning well, doing well, and I'm sure that if you be with me for entire session and for entire these videos lectures, you are going to be a master of accounting. So we now we are going to start learning terminology of accounting. It means that whatever the terms used in accounting, what does it mean? So basic meaning we are going to learn with a variety of example which may or may not be given in your uh, uh, textbook, right? So the first we are going to learn the business transaction. What you mean by business transaction? So I have already written this the definition: exchange of product or services between two or more persons in form of cash or credit, right? So exchange of product or services, for example, you are Mr. A and I am Mr. B, right? So suppose you are giving me a goods worth rupees 1000 rupees, right, goods worth rupees 1000, and I am giving you cash, or I am not giving you the cash, means it may be on a credit. So this transaction is called business transaction, right? So what is the business transactions? When a business is purchasing from another separate entity, then, right? Instead of to get more idea about the business transactions, we can learn personal transactions, right? Personal transaction means, for example, A and B are partner, right? When A is paying fees, right, paying fees of his son, right, paying fees or school fees of his son, it is personal transaction, but when A is buying, because A have the business, right, ए का बिजनेस है और बी का भी बिजनेस है या वो सेल करने वाला है, तो ये ट्रांजेक्शन्स, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये माना जाएगा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ये प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकता है, राइट. एंड मोर पर्सन्स, मतलब ये बहुत सारे पर्सन्स ए को देते हैं तो भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाएगा. आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस, राइट. इट इज ऑपोजिट ऑफ पर्सनल transaction. Personal transactions are personal. A is not doing business his own, but he has the business, AB business, right? So as a part of his personal belonging, he is paying fees of his son, and that's why this is called personal transactions. Whereas this business transactions, when business transact with other person. Now, what is cash transaction of business? Cash transaction of business means when A is a business, right, and buying goods from B business, right, and A is so goods worth rupees, for example, 3000 rupees, right. So buying 3000. Now, in exchange of 3000, if A is giving cash, right, giving cash or bearer check, right, bearer check, it is considered as cash transactions. Again, let me tell you, this bearer check, you must be wondering that bearer check or any cross check, right, if it is given, then also it is considered as cash transactions. So whatever the goods or services purchased, the same amount is transferred, then it is a cash transaction, right. Now credit transaction, so many a times it happens, right, many a times it happens that it is not possible to give money at the time. इन टाइम हम मनी नहीं दे सकते या कुछ क्रेडिट पीरियड चाहिए, तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए बी ब्रदर्स, राइट, एक फर्म है मान लो,
राइट, ए फर्म है, और ए सी जो अदर फर्म है उसके पास से गुड्स परचेस करते हैं, लेकिन अभी ये पेमेंट नहीं करते हैं, राइट, नो पेमेंट, नो कैश, no check, right, is not given, then it is considered as credit transaction. मतलब this person AB will give after 15 days, after 21 or 21 days, right? So these are the credit period. It is considered as credit period, right? So credit period is given. Why credit period is given? Because to improve the sales or increase the sales. Why credit period is given? Increase the सेल्स को बढ़ाने के लिए ये क्रेडिट करते हैं. मान लो कि ये एसी है, वो मतलब एसी जो कंपनी है वो ज़्यादा नहीं बेचती, मतलब कैश में ही बेचती है, मतलब एसी है वो, उसकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है. तो ए बी विल नॉट बाय फ्रॉम एसी, मे बी ए डी, मे बी ए बी विल गो टू ए न्यू फर्म के जहाँ क्रेडिट मिल रहा है. तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ये इसको बोलते हैं, जहाँ कैश अभी नहीं देना है. तो ये क्या कर सकते हैं, ए बी फर्म है वो कस्टमर को ये बेच सकते हो, और बेचा हुआ जो कैश आएगा वो कलेक्ट करके यहाँ दे सकते हो, और उसका जो बीच वाला मुनाफा है, प्रॉफिट है, दे कैन अर्न. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इट मीन्स दैट इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश और चेक इज नॉट बीइंग एक्सचेंज, राइट, ये एक्सचेंज होता नहीं है, इसके लिए उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. It means in any transaction, if it is cash involved, it is cash transaction. If cash is not involved, or check is not involved, or bank is not involved, it is considered as credit transaction. Next term that we are going to learn is event. So many a times it happens that transactions and events are considered as one and same, but it is not one and same. Transaction is different and event is different. Event is recognized as incidence, right? Event is an incidence. कोई घटना होती है, इवेंट को क्या बोलते हैं, घटना, और ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं, राइट? तो ऐसा इंसिडेंस होता है, मीन्स इट क्रिएटेड वन सम काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? So this incidence or situation is considered as event. ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ए एंड बी एग्री टू सेल प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट, राइट, प्रोडक्ट देते हैं, पेमेंट होते हैं, वो ट्रांजेक्शन होता है. इवेंट क्या होता है, इट हैपन्स, इवेंट इट हैपन्स. फॉर एग्जाम्पल फ्लड आया, और फ्लड्स आया, इसके लिए हमारा लॉस गया, राइट, हमारा जो गुड्स जो है वो वेट हो गया एंड वी गॉट ए लॉस. दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट. तो लॉस इट एज इवेंट, हमने जानबूझ के नहीं लिया थी. फिर फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, राइट, डेटर्स फॉर एग्जाम्पल 10,000 हमने दिए थे, लेकिन ही इज नॉट गिविंग अस 10,000 एंड एट द एंड ही इज गिविंग अस 5,000. सो 5,000 is considered as bad debts. So 5,000 is a loss. This is an event, right? So there are various types of event can occur in a business, and if it is in a monetary terms, right? Monetary terms. So we have to record it, right? So all events and all transactions are being recorded. So whatever the incidents happens or situation is created, we have to record. Similarly, let me tell you, suppose you have paid insurance premium, right? Insurance premium, and you know that 1/4 is 1st March is our accounting period, starts with accounting period. Suppose this is 2019, right? And it will end on 31/3/2020, right? Suppose you have purchased a insurance premium on 1/6/2019, right? 1/6/2019. Now suppose you have purchased this insurance on this, and this insurance period is also of 1 year. So 31st
5/5/2020 will expire, right? This insurance will expire on this date. Now whatever you have paid of this period, right, ये पीरियड के लिए आपने किया है वो प्रीपेड होगा. क्या होगा? इस साल हमारा ये तो ईयर खत्म हो गया तो प्रीपेड. तो वैसे prepaid is also an event, postpaid is also an event, unpaid is also an event. So ऐसे events we need to record in the books of account. Next is capital. So capital is very much you can understand what is capital. So let's see the definition of capital. An investment made by owner, right, to start or run the business is known as capital, right? तो start के लिए, right, फॉर एग्जाम्पल हमारा पार्टनरशिप फर्म खोलना है और मैंने बोला था कि कंपनी भी खोलना है, तो कंपनी खोलने के लिए तो मनी चाहिए, राइट? उसके शेयर बार इश्यू करने के लिए भी हमको मनी चाहिए. तो टू स्टार्ट वी नीड मनी, राइट? फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटर हमको बनाना है. सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही आदमी वो सब करता है, वो सोल प्रोप्राइटर होता है, राइट? तो सोल प्रोप्राइटर बनाते हैं तो उसकी दुकान लेना, वो गुड्स भरना, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए व्यवस्था करना, ये सब एक्सपेंस होते हैं. सो इट टू स्टार्ट दैट बिजनेस वी हैव टू इंकर सच इन्वेस्टमेंट्स. वो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. तो ये कौन देता है? पहले ओनर देता है. कौन देता है? ओनर ही स्टार्ट करता है, राइट? पार्टनरशिप फर्म होती है तो जितने भी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, सो दे विल प्रोवाइड ए कैपिटल. और इसके अकाउंट कैसे लिखते हैं वो तो स्टैंडर्ड 12th के वीडियो में आपको मिल जाएगा. देन टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन द बिजनेस. सो मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट एक्सपांसन करना हो. एक्सपांसन अभी हमारी जो ब्रांच है या शॉप है या कंपनी है तो एक जगह है. फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में, अभी हमको बड़ौदा में खोलना है या कलकत्ता में खोलना है या दिल्ली में खोलना है या मुंबई में खोलना है, तो इतना एक्सपेंशन करना होगा. वी नीड व्हाट? मनी. तो इसके लिए अगर हम ओनर अगर पैसा देता है तो वो कैपिटल किया जाएगा. तो लेट मी टेल यू, इन ए शेयर इन ए कंपनी ऑल्सो who provide the capital? Shareholders. Who provide the capital? Shareholders provide the capital. तो शेयर होल्डर्स मनी देते हैं. और आपको पता है कि राइट इश्यू करते हैं और न्यू शेयर्स इश्यू करते हैं कंपनी. न्यू शेयर्स इश्यू करती है कंपनी. क्यों? ज़्यादा पैसा चाहिए एक्सपांसन के लिए, राइट? सो दिस इज whatever discuss is given by a proprietor or owner to the business. Owner has given to business. ये क्यों हुआ? ये बिजनेस की लाइबिलिटी एक्चुअली बनेगी. क्या बनेगी? लाइबिलिटी बनेगी. तो ओनर हैज गिवन एनी बेनिफिट्स टू बिजनेस इज कंसिडर एज कैपिटल, और उसके बदले में कुछ लेगा, वो रिटर्न लेगा, राइट? So in a company, shareholders are owner. So whatever the capital of shareholder is considered as capital, right? Shares will be considered as capital. Similar way, in a partnership firm, the money provided by partners is considered as capital. Cooperative society, whoever the member of that society, right, they are partner and they provide capital to start cooperative society. Sole proprietor is completely investing their own money, right? So whatever the investment made by the owner to start or run the business is known as capital. So capital is considered as own capital or own capital. own अपने का है, right? और बाहर से अगर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक से, आपकी कंपनी बैंक से लेती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, वो बोलते हैं लोन कैपिटल. क्या बोलते हैं? लोन कैपिटल. तो ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल. सो कैपिटल इज कंसिडर एज ओन बिकॉज इट इज ओन बाय ओनर्स, राइट? सो बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी. दैट कॉन्सेप्ट यू विल सी, राइट?
Business is separate quantity, and that's why there are the transactions between owner and business is being recorded. Owner और business के जो transactions है वो record होते हैं. I hope that you understood the meaning of capital. So with capital we can also learn the drawing, right? When the company or the business gives the benefit to the owner, it is considered as drawing. For example, A and B are firm where A is one of the partner, right? So when A and B firms gives any amount except this profit, right? So it is considered as drawing. It is considered as drawing. It is reverse procedure. In capital, A is providing money. In this drawing, A is getting money, right? A is getting money. So the reverse mechanism is considered as drawing, right? We can see this owner and business. So when owner gives any benefit to business is become capital. When owner takes any benefit from the business is considered as capital. One more thing I like to explain here, that capital is not always cash or bank, cash or check, right? It is not always. कैपिटल में ऐसा नहीं होता है कि ओनली कैश लाए तो कैपिटल गिना जाएगा, लेकिन पर्सनल असेट्स लाए, राइट? फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग लाता है, राइट? ए बिल्डिंग लाता है और बिजनेस को देता है, इट इज़ कंसिडर एज कैपिटल. तो असेट्स लाए या कोई डेटर्स लाए, राइट? मतलब करंट असेट्स लाए, जो भी लाए, सो इट इज़ कंसिडर एज एन एसेट्स, राइट? और कंसिडर एज एन ड्राइंग. तो एसेट्स भी ला सकता है, कुछ भी एसेट्स में कुछ भी ला सकता है जिसकी वैल्यू हो, राइट? सो इट इज़ नॉट इन अ कैश, इट ऑल्सो इन अ काइंड्स, राइट? कोई वस्तु लाता है तो भी उसको कैपिटल गिना जाएगा, वैसे ही वस्तु ले जाता है तो उसको ड्राइंग गिना जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी का जो पार्टनरशिप फर्म है वो फॉर एग्जांपल वो क्लोथ्स बेचते हैं, राइट? क्लोथ्स बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं. तो ए और बी अपने बच्चे के लिए कपड़े ले जाता है तो वो ड्राइंग में आएगा, राइट? तो यहाँ वो कैश नहीं ले जा रहा है लेकिन बच्चों के लिए कपड़े ले जा रहा है, तो इट इज़ कंसिडर एज ड्राइंग. नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी. लायबिलिटी इसको बोलते हैं देवा, मतलब वो जो किसी को चुकाना है, उसको देना है, उसका वो लायबिलिटी बोलते हैं, राइट? तो द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी इज एनी अमाउंट which is payable by the business, right? और amount due to business is considered as liability. liability कब बनती है? मैंने बोला था कि हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं. फॉर एग्जांपल ए ने बी को 3,000 का गुड्स बेचा, आगे हमने बोला, राइट? लेकिन ए बी ने अभी वो पैसा नहीं लौटा है, तो बी के लिए इट बिकम्स ए लायबिलिटी. इट बिकम्स ए liability, right? So any amount, this is one example of liability. Liability may be many types, right? तो अगर ये कैश में नहीं हुआ है तो 3,000 बी को ए को कभी भी देना होगा, वो इस बिकम लायबिलिटी फॉर बी. अभी नहीं दिया है तो देना पड़ेगा, राइट? तो लायबिलिटी, तो अमाउंट ड्यू टू, किसी को पे करना है, बाकी है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं, राइट? तो लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी आर बेसिस ऑफ द रिलेशन कौन किसकी लायबिलिटी है, राइट? तो उसको ऐसे लायबिलिटी बोल जाते हैं. इंटरनल लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और ओनर, लायबिलिटी ऑफ ओनर. ये बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, राइट? तो बिजनेस क्या सोचेगा कि ये देना है, तो कैपिटल बिकम्स लायबिलिटी फॉर ए फर्म और कंपनी, राइट? सो इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी, राइट? इंटरनल लायबिलिटी, राइट? तो इंटरनल लायबिलिटी वो क्या होता है, जो ओनर को देना है वो उसकी जो कैपिटल है वो बिकम्स इंटरनल लायबिलिटी. एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी अदर देन ओनर, किसी को पे करना है, राइट?
फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, फॉर एग्जांपल लोन लिया है तो बैंक को करना है, राइट। फॉर एग्जांपल किसी को हमको देना है गुड्स का, राइट। तो इट बिकम्स हम हमारे लिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, बिकॉज एक्सेप्ट ओनर हमको पे करना है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, current liability and non-current liability. So on the basis of time, right, current liability and non-current liability. Current liability, a liability which can be paid or which should be paid within 1 year. Within 1 year it is considered as current liability. एक साल के अंदर आपको जो पे कर देनी पड़ेगी वो बोलते हैं current liability. और एक साल के ज़्यादा अगर टाइम पीरियड है आपके पास तो वो बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने हाउसिंग लोन लिया, राइट, हाउसिंग लोन लिया, आपके घर के लिए हाउसिंग लोन लिया और वो HDFC बैंक से लिया फॉर एग्जांपल, राइट। तो HDFC बैंक एक साल में ही पे कर दो ऐसा नहीं होता है, वो दैट गिव्स ए टाइम पीरियड फॉर 10 to 20 years and 30 years also. सो 10 years दे आर नॉट, मतलब 1 year में वो पे नहीं करना है। तो आपके लिए जो ये बैंक लोन है इट इज बिकम ए नॉन करंट लायबिलिटी, राइट, नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी जैसे ये क्रेडिटर हो गया, हमने गुड्स खरीदा तो वो पे करना है, राइट, वो हमारे जो क्रेडिटर्स है उनको पे करना है, तो वो बोलते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स 365 डेज के अंदर करना हो। अगर आपको डीप में जानकारी चाहिए तो एक क्वेश्चन में ऐसा पूछता हूँ कि आपको आता है कि नहीं, वो चलो देख लेते हैं और आपका ज्ञान का जो अभी का जो लेवल है वो क्या है वो चेक कर सकते हैं, और ये एकदम लेटेस्ट नॉलेज है, आई एम शेयरिंग विथ यू। वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव, राइट, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है, राइट, और ये आपके टीचर को भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक कंपनी है, उसने डेबेंचर इश्यू किया। डेबेंचर इज ए वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, राइट। तो डेबेंचर इश्यू किया एंड इट इज पेएबल इन 5 years, राइट, 5 years, YEARS, राइट, 5 years के बाद ये पे करना है। सो फॉर सपोज ये 2020 में हमने इश्यू किया फॉर 5 years, राइट, आज की तारीख में, राइट। तो ये दिस बिकम्स व्हाट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी? ऑफ कोर्स इट बिकम्स नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन लिखूँ ना तो आपको इंटेलिजेंट, IQ में बोलता हूँ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन में बोलता हूँ, राइट। ये फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता हूं कि डेबेंचर इज ऑलवेज नॉन करंट लायबिलिटी, ऑलवेज नॉन करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट लायबिलिटी ही होती है, आज कल परसों कभी भी, कांट बी इट ए करंट लायबिलिटी। माय क्वेश्चन इज दिस, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। ये डेबेंचर है, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन ली है, राइट, बैंक लोन ली है और बैंक लोन में 10 years का टेन्योर रखा है, राइट, 10 years का टेन्योर रखा है। इज बैंक लोन इज ऑलवेज ए नॉन करंट लायबिलिटी? माय क्वेश्चन इज, सो आप बोलोगे यस सर, क्या है इसमें, ये नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगी। आई सेइंग नो, इट कैन बी ए करंट लायबिलिटी। कैसे, मैं समझाता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बैंक लोन आपने ली है, राइट, वेट, फॉर एग्जांपल ये फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये बैंक लोन 10 years के लिए ली है, राइट, और उसका टेन्योर खत्म होता है 30/9/2020 को, और आज की तारीख है मान लो 1/4/2020, आज की तारीख है 1/4/2020, और ये क्या है, बैंक लोन है, राइट, और बैंक लोन का 1 लाख रुपीज़ है मान लो, राइट। तो नाउ सी, ये बैंक लोन 10 years के लिए था तो नॉन करंट लायबिलिटी था। नाउ ये बैंक लोन अभी कितने सालों में पूरा करना है, तो इट इज 9 months में, 9 months भी नहीं,
6 मंथ्स में, राइट, 6 मंथ्स, इट इज नाउ लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर होगा तो ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी. यू गॉट दिस पॉइंट. So now bank loan can be considered as current liability if the maturity date is near. This is as per Ind AS. आप इसको करंट लायबिलिटी गिन सकते हैं. जो कंपनीज होती है वो डिबेंचर को, वो लोन को, राइट, वो बॉन्ड्स जो इश्यू करते हैं उसका जो 1 ईयर के लेस देन 1 ईयर होता है तो इट इज कंसिडर एज करंट लायबिलिटी. ये याद रखना, आपकी बुक्स में नहीं होगा लेकिन ये लेटेस्ट नॉलेज है. जब मैं IQ का क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो लेटेस्ट नॉलेज से ही निकलता है, जो अभी का जो ज्ञान है वो ही है. मतलब ये डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स जो 10 साल के 100 साल के भले रहे लेकिन अभी मैच्योरिटी डेट लेस देन 1 ईयर आ गया तो इट बिकम्स current liability. I hope that this is toughest example I have given और ये आपको टीचर आपके टीचर को भी पूछ सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं. So this is already we have discussed internal liabilities towards the owner, and external liabilities towards the third party other than owners, that we have already discussed. And these also we have discussed current liability and non-current liability. Current liability is a short-term liability within 1 year, means 365 days के भीतर अगर पेमेंट करना है तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा. नॉन करंट लाइबिलिटी इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. बैंक लोन ऐसा, बट टाइम पीरियड कितना होगा, 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट इज ऑफ असेट्स. असेट्स मानी मिल्कत होता है, राइट. असेट्स which a company owns. So assets may be plant, machinery, furniture, fixtures, etc., right. So the assets can be classified into non-current assets. Non-current assets is considered as a fixed assets or long-term assets, right. जो हमारे बहुत साल, 1 साल से ज़्यादा तक रहने वाला है, जो मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट्स, राइट, इन मैनी केसेस गुडविल ऑल्सो, तो इट इज़ कंसिडर एज नॉन करंट एसेट्स. जो ज़्यादा साल रहने वाला है वो, राइट. इसका अलग से क्लासिफिकेशन भी है, हम सीखेंगे, राइट. एंड करंट एसेट्स, ए एसेट विच कैन बी यूटिलाइज विद इन 1 ईयर, इट इज़ कंसिडर एज करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स कैसे होते हैं, तो डेटर्स एग्जाम्पल है, डेटर्स, राइट, बिल्स रिसीवेबल, कैश होता है, राइट, बैंक बैलेंस होता है, राइट, स्टॉक होता है. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, क्योंकि स्टॉक 1 साल में हमारा बिक जाएगा, डेटर हमको 1 साल में पे कर देंगे, बिल्स 1 साल में मैच्योर हो जाएंगे, कैश तो हमारा है ही, कैश एंड बैंक बैलेंस इज एसेट्स, राइट. सो दिस इज द करंट एसेट्स. ये लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं जो हम बहुत सालों तक यूज़ करेंगे और उसका हमारा बेनिफिट मिलेगा. और ये एसेट्स क्यों खरीदते हैं, बेसिकली टू अर्न द प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल मशीनरी लिया, मशीनरी क्यों लिया, कि उसका प्रोडक्शन करके हम सेल करके हम मुनाफा कमा पाए, तो इसलिए दिस असेट्स गिव्स अस द हेल्प्स अस इन टू अर्न द प्रॉफिट. तो ये नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एज पर द पीरियड हो गया, राइट. देर आर अदर एसेट्स ऑल्सो लाइक द फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स अवास्तविक मिल्कत, जो मिल्कत बोलते हैं लेकिन होती नहीं है, राइट. मिल्कत बोलते हैं लेकिन होती नहीं है, तो ऐसी मिल्कत को क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, कंपनी वो शेयर इश्यू करते हैं, राइट. कंपनी शेयर इश्यू करते हैं, तो जो शेयर इश्यू का कॉस्ट होता है, राइट, शेयर इश्यू का कॉस्ट होता है, इट इज कंसिडर एज एन असेट्स. इज इट कंसिडर एज एन असेट्स, क्योंकि जब तक ये शेयर रहेगा तब तक हम उसका एक्सपेंस का फ़ायदा लेंगे, राइट. फ़ायदा इसलिए लेंगे कि जब तक शेयर रहेगा तब
तब तक। इसलिए डिबेंचर जो है, डिबेंचर डिस्काउंट, वो भी क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारा एडवर्टाइज का एक्सपेंस किया और उसका बेनिफिट हमको 4 साल मिलने वाला है, राइट, 4 years वी आर गेटिंग दैट बेनिफिट। तो इन 1 year वी डिड ऑल एक्सपेंसेस, उसका बेनिफिट 4 साल हमको मिलने वाला है। तो नाउ ऑन दिस फिक्टिशियस एसेट वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, मतलब अभी ये हमारा एक्सपेंस हो गया, मतलब हो गया, अभी वो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वॉट एवर द अनरिकवर्ड और वी कैन नॉट रिकवर्ड दैट एक्सपेंसेस, और उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म मिले, उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, राइट, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स को हमको ये डेप्रिशिएशन नहीं गिनना है, वो करना है, राइट ऑफ करना है, WRITE ऑफ, राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ, मीन्स मांडी वालना पड़ेगा, मांड वाली करना पड़ेगा, राइट। तो ये नॉन करंट एसेट्स एंड fictitious assets. So non-current assets already we have learned. Tangible assets, right? The assets can be classified into tangible and intangible assets. Tangible assets we can you can see, you can see, you can touch, right? जो assets हैं जो आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वैसे asset को क्या बोलते हैं, tangible assets बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आपका घर का हो, राइट, तो आप देख सकते हो, यस, आप उसको टच कर सकते हो, यस, सो इट्स अ टेंजिबल एसेट्स, राइट। तो जो भी एसेट्स हमको दिख रही है हमारे बिजनेस में और हम उसको टच कर सकते हैं, इसको टेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं, और वो बिकने से हमको मिलेगा कुछ ना कुछ पैसा, वरना भंगार के पैसा भी हमको मिलेगा। सिमिलर वे इंटेंजिबल एसेट, द एसेट वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच, right, we cannot see and we cannot touch, it is considered as intangible assets. तो फर्नीचर फिक्चर्स, ये सब फर्नीचर फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, देन व्हीकल्स, बिल्डिंग, राइट, तो ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट हमको दिखे नहीं लेकिन एसेट्स हो, तो उसकी कैटेगरी में आता है गुडविल। गुडविल क्या है, कैसे है, वो बाद में देखेंगे। गुडविल वो हमारा अच्छा नाम है, राइट, गुडविल होता है। देन पेटेंट होता है, राइट, पेटेंट होता है। कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, राइट। देन नो हाउ, कॉपीराइट, नो हाउ। सो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ। ट्रेडमार्क, राइट, ये SBI का ऐसा है ना, SBI का ऐसा ब्लू करके है। अगर मैं मेरी घर पे बैंक खोल के ऐसा ये सिंबल लगा के करूँगा तो SBI मेरे पे क्लेम करेगी, क्यों, उसका ये ट्रेडमार्क है, राइट। तो अगर मुझे ये करना है तो खरीदना पड़ेगा। सो फॉर SBI दिस लोगो इटसेल्फ इज ए ट्रेडमार्क। तो डुप्लीकेट जो आता है वो ट्रेडमार्क का वायोलेशन करके करते हैं, तो इट इज कंसिडर एज इनटेंजिबल एसेट्स। सो इनटेंजिबल एसेट्स का भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी, राइट। सो इनटेंजिबल एसेट्स वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ऐसे जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन और क्या क्या है वो डीप में बाद में हम देखेंगे। Current assets, we already said current assets, the assets which can be utilized within 365 days, right? So less than 365 days का जो assets होता है वो सब assets क्या बोलते हैं, current assets बोलते हैं। इसका डिस्कशन हो गया है, आगे मैं नहीं करूँगा। लिक्विड assets means which is near to cash, right? जो लिक्विड तुरंत हो जाता है, जिसका कैश में कन्वर्जन तुरंत हो जाता है, तो लिक्विड एसेट कौन सी है, तो कैश लिक्विड होता है, तो कैश ही है, राइट। देन बैंक बैलेंस, राइट, बैंक बैलेंस भी क्या है, लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि वो आप घर पे लाके वो कैश कर सकते हो, राइट, चेक देके कैश कर सकते हो। देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल
सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, राइट? आपके बिजनेस ने शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो 3 दिन में पैसा आ जाता है। T+2 हमारा वो है ट्रांजैक्शन हो, उसके 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी खरीद बेच रहे हो उसको, और 2 दिन में पैसा देना है। तो ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, राइट? वो क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स है। लेकिन आपने अगर बॉन्ड खरीदा और वो भी 5 साल का, तो वो लिक्विड नहीं है, 5 साल के बाद मिलेगा। वैसे ही आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और प्रीमियम पे करते जाओ, पर 5 साल तक करना है और बाद में 10 साल के आप मिलेगा, तो ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, ये लिक्विड एसेट्स नहीं है। लेकिन लिक्विड एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसको कैश और उसके काइंड में कैश में तुरंत कन्वर्ज हो जाए, राइट? तो कैश, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह हमने जो देखा वो क्या है? लिक्विड एसेट्स है, राइट? आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रियल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट का कुछ उपजता नहीं है, यू कैन नॉट सेल इट, राइट? यू कैन नॉट सेल इट एंड यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश। ऐसी एसेट्स है जो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस हैवी कर दिया, अब आप रिकवर नहीं कर सकते हो, राइट? उसका सेल बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन आप बोले कि नहीं मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वापस चाहिए, तो आपको नहीं हो सकता है। वो फिक्टिशियस एसेट्स हो सकती है, वो फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। रियल एसेट्स क्या होती है? जो रियल में होती है, जो हम सेल करके वी कैन सेल इट एंड वी कैन गेट ए कैश, राइट? जो कैश में मिल सकता है, वैसी एसेट्स को क्या बोलते हैं? रियल एसेट्स। जो हमारे पास जो उपजाऊ होती है, जिसको हम बेच सकते हैं और कैश होता है, जिसका इट मीन्स वैल्यू होता है, राइट? इसका भी वैल्यू होता है, लेकिन ये वैल्यू का कैश नहीं आता, ये वैल्यू का कैश आ जाता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रियल एसेट्स एंड fictitious assets. So these 15 terms we have learned in this lecture. Remaining total 46 terms we are going to learn. So remaining terms we will see in the next video. So thank you very much for attending this.